घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय चीन दौरा हुआ पूरा। व्यापार, निवेश, सीमा विवाद समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर हुई बात, लेकिन बड़ा सवाल कितने बदलेंगे भारत चीन रिश्ते। भारत और चीन के संबंध कितने बेहतर होंगे, कितना यकीन भारत चीन पे कर सकता है, क्योंकि 1962 की जो यादें हैं वो बिल्कुल अभी भी लोगों के जहन में है। लोग सोचता है कि क्या हम चीन पे विश्वास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत और चीन के रिश्ते, एक जो इनका ये दौरा है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। 3 दिवसीय दौरे के बाद काफ़ी कुछ खुलकर बातचीत हुई। भारत के तरफ से भी जिन बातों को रखना चाहिए था उसे मजबूती से रखा गया। कुल मिलाकर के व्यापार से लेकर निवेश या फिर सीमा विवाद, ऐसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो भूमिका है, तमाम मुद्दों पे, मसलों पे बातचीत हुई। प्रधानमंत्री न सिर्फ अधिकारियों से मिले बल्कि तमाम वहाँ के जो युवा हैं उनसे भी मिले, वहाँ के उद्योगपति से भी मिले। इसके अलावा जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वहाँ उनसे भी मिले। उन्होंने कहा अगर आप भारतीय समुदाय के लोग, एक आदमी अगर 5 चीन के नागरिकों को भारत को लाएंगे, दिखाएंगे, घुमाएंगे, उससे न सिर्फ पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा बल्कि साथ ही साथ कई ऐसे हैं जो भारत को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो दूरियां हैं, पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है, उससे संबंध बेहतर होंगे। कई पहलू हैं इस पूरे दौरे का, हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं हम सबसे पहले कि पहले दिन से लेकर और आखिरी दिन तक 3 दिवसीय दौरा में क्या क्या कहा गया। Issues were discussed, boundary issues were discussed, including peace and tranquility on the border. Trans-border rivers was discussed. On the economic side, the trade deficit and the investment climate. These were 2 issues which came up. There was some discussion on the challenges of reforms. And President Xi spoke of the miracle of Gujarat under Prime Minister, and now the fact that he was trying to now do it at a national level. There was some time spent on discussing connectivity issues and finding ways of India and China working together. Then terrorism naturally came up because of today's incident in Kabul. There's a reference to that and to the attack in Karachi. And the need to strengthen counter-terrorism cooperation between India and China. There was also the issue of CCIT, the Comprehensive Convention on International Terrorism, that was mentioned on our side. एक पक्ष ये है, पहले दिन के बाद जो भारत के अधिकारी हैं, आधिकारिक तौर पे बयान दिए गए, वो आपने देखा, उसका अंश देखा आपने। अब दिखाते हैं डे 2 में प्रधानमंत्री जी जब मिले, उन्होंने क्या क्या कहा, वो भी आप देखें। We both reiterated our strong commitment to make all efforts to maintain peace and tranquility in the border region. I also reiterated the importance of clarification of line of actual control in this regard. Today, we have signed over 20 agreements covering diverse areas of cooperation. This includes cooperation in the railways and the 2 Chinese industrial parks in Gujarat and Maharashtra. We have a historic responsibility to turn this relationship into a source of strength for each other and a force of good for the world. We are committed to set a new direction between the 2 largest Asian countries. Terrorism is shared threat. Instability in West Asia matters to both of us. Peace and progress in Afghanistan benefits us both. I am confident that our international partnership will deepen. The Nathula route
for Indian pilgrims to visit Kailash Mansarovar will become operational in June. I want to thank China for that. सेकंड डे की ये बातें थी। अब तीसरा दिन यानी आज जब उन्होंने अपने दौरा को पूरा किया, उससे पहले जो कुछ बातचीत की उसके कुछ अंश आपको हम दिखा रहे हैं, जो मुख्य बातें। 16 मई को एक साल पहले एक ही स्वर दुनिया भर से सुनाई देता था, एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। Moody's have recently upgraded the rating of India as positive on account of our concrete steps in various economic fields. Friends, Indo-Chinese partnership should and will flourish. I expect very good outcome from this coming together. कोई पूछने को तैयार था क्या? कोई सुनने को तैयार था क्या? कोई देखने को तैयार था क्या? एक साल के भीतर भीतर आप सीना तान करके आंख में आंख मिला करके दुनिया से बात कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? दुनिया आपको संभार से देखती है कि नहीं देखती है? आपको स्वयं के भारत की प्रगति के प्रति गर्व होता है कि नहीं होता है? चुनाव के अंदर मेरे प्रति जो अपप्रचार होता था वो क्या होता था? ये मोदी को कौन जानता है? गुजरात के बारे कौन पहचानता है? ठीक है, गुजरात में उसकी गाड़ी चलती है, कौन जानता है? यही कहते थे ना, सब लोग यही कहते थे। और जब विदेश की बात आती थी, अरे भाई विदेश का तो इसको कुछ समझ ही नहीं है, क्या करेगा? लेकिन आलोचना सही थी, आशंका सही नहीं थी। मेरा बायोडेटा देख करके कोई मुझे प्रधानमंत्री बताएगा क्या? ना, रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला वो प्रधानमंत्री? मेरा बायोडेटा देख करके कोई मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता की ताकत है, भारत के संविधान की शक्ति है। आज मैं 16 मई एक साल के बाद इस कोटि कोटि जनों के सामने अपना सर झुकाता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। वैसे राजनेता चीजें बुलाने में ज्यादा माहिर होते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि यार अच्छा है लोग भूल जाए। न मैं भूलना चाहता हूं, न मैं भुलाने देना चाहता हूं। देश की जनता ने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। और मैंने तीसरी बात यह कही थी कि अनुभवहीनता के कारण शायद मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बद इरादे से कोई गलत काम नहीं करूंगा। कि पूरे साल भर में किसी ने हम पर आरोप नहीं लगाया कि हमने बद इरादे से या निजी स्वार्थ से कोई गलत कदम उठाया हो, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। चीन के इतिहास में पहली बार चीन के राष्ट्रपति बीजिंग के बाहर जाकर के किसी और शहर में किसी दूसरे देश के नेता का स्वागत करते हो, ये चीन के इतिहास में पहली बार।
एक तरफ पूरा विश्व और एक तरफ हम दोनों, वक्त बदल चुका है दोस्तों। और इसलिए चीन और भारत मिलकर के न सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन वे दुनिया को भी अनेक संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो जो आपने आखिर के जो क्वेश्चन सुने वो भारत के जो सामुदायिक वहाँ के लोग रहते थे उनको एड्रेस कर रहे थे कि भारत में एक साल में क्या क्या उन्होंने किया है, क्या कैसे चीज़ें थी और क्या चीज़ें आगे हुई। लेकिन उस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम कि जो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उस रिश्तों में कितने बदलाव आ सकते हैं या आने की संभावना है, या कितने बेहतर होंगे, या चीज़ें क्या वाकई जिस तरह से भारत देखता है कि चीन भारत के तरफ जो आक्रामक जो चीन का रुख है, रवैया है, उसमें क्या परिवर्तन होने की गुंजाइश है तो कितनी है और हो सकता है क्या है। हमारे साथ है दिनेश सिंह जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। हमारे साथ अनिश दुरानी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। प्रबोध कुमार जी हैं जो रक्षा विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद है। प्रबोध जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि जो कुछ भारत और चीन के रिश्ते रहे हैं और जो 3 दिवसीय दौरा को आपने तमाम चीज़ों को इसलिए हमने डे 1, डे 2 और डे 3 के जो अंश हैं उसको आपको दिखाया हमने, इससे क्या निकलता, आगे का रास्ता किस तरह का है? सबसे पहले मैं जैन टीवी के दर्शकों को जय हिंद बोलना चाहता हूं। जहां तक देश के 2 देशों के रिश्तों की बात है और मोदी जी की जो यात्रा रही, इस पे विश्लेषण करने से पहले हमें कुछ इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा और थोड़ा इतिहास के बारे में भी जानना पड़ेगा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद आज़ादी के तुरंत बाद ही कबायलियों ने देश पे हमला बोला। 47 में देश की स्थिति थी कि हम लड़ाई से जूझ रहे थे। उसके बाद 1962 में हमारे ऊपर हमला होता है। 15 सालों में हमने क्या सीखा? 15 साल तक हम उसके लिए तैयार नहीं थे। देश की जो रक्षा व्यवस्था है उसको हमने चौपट किया, जो उस समय के नेतृत्व थे उन्होंने चौपट करके रखा, और इसी का परिणाम रहा कि एक बुरी हार हम वहाँ चाइना में हारे। चाइना में जो लड़ाई गई थी वो जो समय था और आज का समय है उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। उस समय जब चाइना से हम लड़ रहे थे तो हमारे पास 12,000 सैनिक थे और चाइना के 80,000 जवान थे वहाँ पे। तो 12,000 सैनिकों का 80,000 सैनिकों से के साथ लड़ना बड़ा ही मुश्किल काम था। जब चूंकि हम 3 दिवसीय दौरे पे बात कर रहे हैं कि ये जो दौरा हुआ है इससे चीज़ें क्या कितने बदलेंगे, कितने रिश्ते बेहतर होंगे या बदतर होंगे, या बेहतर होने की संभावना है, या यहाँ से जो दौरे हुए हैं, दौरे में समझौते हुए हैं, निवेश की बातें हुई हैं, सीमा विवाद हल करने की जो बातें हुई है, तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई है। तो यहाँ से भारत और चीन के रिश्ते कितने बेहतर होंगे, कितने बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, या दोनों देशों के अपने अपने जो सामरिक दृष्टिकोण है या जो राजनीतिक दृष्टिकोण है या जो भौगोलिक सोच है या दुनिया को बदलने के, दुनिया में अपनी भूमिका को लेकर सोच, उसमें टकराव भी है, उसमें अपने अपने हित भी है, हितों का भी टकराव है। तो क्या चीज़ों को लेके वाकई हम बदलाव देख सकते हैं, ये सवाल है मेरा। लेकिन उससे पहले कि हम जवाब ले, हमें एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ेगा। जल्द वापस लौटते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं भारत और चीन के रिश्ते कितने बेहतर होंगे या कितने उसमें बदलाव आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही कि उनको दिखाई देता है कि बहुत अच्छे इसके परिणाम निकलने वाले हैं। जी प्रबोध जी, बहुत कम शब्दों में, लेकिन चाहेंगे हम कि फोकस जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो दौरे हैं, उस पर आप बात करें।
ऐतिहासिक दौरा है दोनों देशों के बीच, और अब जो पूरी दुनिया इस देश को एक ताकतवर देश के रूप में देख रही है, और इसका ही असर है कि जिस तरीके का वार्म वेलकम एक भारत के प्रधानमंत्री को चीन में मिला, और चीन जिस तरीके से दोस्ती का हाथ भारत की तरफ बढ़ा रहा है, क्योंकि चीन को भी लगता है कि अब जो है हम टकराव की स्थिति रख कर करके और इस महाद्वीप में अपनी बादशाहत कायम नहीं रख सकते। अगर उसे आर्थिक रूप से समृद्ध अगर चाइना का भी होना है तो वो भारत से टकराव नहीं ले सकता, क्योंकि उसने देख लिया कि ये भारत है जो यमन में अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपना जंगी बेड़ा जो है बिना किसी के अनुमति के और एक अपने जो है टेरिटोरियल वाटर से हट कर करके और वहाँ जाकर कर करके अपने जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स है उसकी मदद से वह अपने नागरिकों को निकाल करके ले आ सकता है। तो एक बहुत बड़ा इसका जो मानसिक जो दबाव है वो चाइना के ऊपर गया है। चाइना ही नहीं, देश की जितनी बड़ी शक्तियाँ हैं उसके ऊपर गया है, और इसका बहुत ही सकारात्मक असर है। और जब तक हम एक सबल नहीं होंगे, अगर हम जब तक सामरिक रूप से सबल नहीं होंगे, जब सैन्य रूप से सबल नहीं होंगे, तब हम आर्थिक रूप से भी सबल नहीं हो सकते। जी, तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि भारत अब वो नहीं है और भारत से रिश्ते उन्हें बेहतर करना अब चीन की भी आवश्यकता है, न सिर्फ भारत की। अनीस दुरानी साहब जी, क्या भारत और चीन के रिश्ते यहाँ के इस दौरे से बेहतर होंगे? इसके मुझको तो ऐसे कहीं आसार नजर आते नहीं है, इसलिए कि जो दौरे की शुरुआत हुई है उसके ही मैं समझता हूँ श्री गणेश सही नहीं हुआ। जब भारत के प्रधानमंत्री जो इतने धूमधाम के साथ गए हैं और दोनों देशों को मिलाने और रिश्ते मजबूत करने गए हैं, लेकिन उसी समय सारे चीन के अंदर जो टेलीविज़न के ऊपर दिखाया जा रहा था उसके अंदर अरुणाचल को और कश्मीर को भारत से अलग करके दिखाया जा रहा था। तो ये मैं नहीं समझता कि ये हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री ने कैसे इसको स्वीकार किया। वो टेलीविज़न पर वो देखते हैं, सारी दुनिया ने उसको देखा। इस पर मैं समझता हूँ किसी तरह से उनको अपना विरोध प्रकट करना चाहिए था डिप्लोमेटिक वे में। ये मैं भी समझता हूँ कि बाहर जाकर लड़ाई नहीं की जा सकती, लेकिन जितना भी एक डिसेंट वे में किया जा सकता था, ऐसी कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है। वो तो चीन का रुख है और ये कोई रुख है तो नहीं, और भारत का रुख वो नहीं। आप अपना नक्शा दिखाते हैं, वो उनकी जो सोच है वो अरुणाचल पे दावा करते हैं, आप कहते हैं हमारा वो एक जो विवाद तो वहाँ है, आपस में सीमा को लेके ही विवाद है। विवाद तो है, लेकिन जब हम ये जाते हैं विवाद के हल के लिए भी बात, दौरा अचानक तो हुआ नहीं, पहले से बहुत पहले सेक्रेटरीज की मीटिंग होती है, ऑफिसर्स की मीटिंग होती है दोनों मंत्रालयों की, और उसके बाद जो कहीं प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट का दौरा तय होता है। आप कहते हैं कि चीन का जो रुख है वो भारत के प्रति उसमें बदलाव नहीं है। जब प्रधानमंत्री वहां गए थे थोड़ा बदलाव है इकोनॉमिक कंपल्शन की वजह से, क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, इसमें डिप्लोमेसी का दखल नहीं बल्कि फाइनेंशियल बाजार का दखल है। जी, चलिए दिनेश जी, कुल मिलाकर के जो इस दौरे को बहुत सारे पूरे देश दुनिया के लोग भी देख रहे हैं, विश्लेषक भी देख रहे हैं, भारत और चीन के रिश्तों से काफ़ी भौगोलिक जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी बड़ा है इसका। और इसके कई जो एक सबसे अहम पहलू है कि भारत और चीन के बीच का एक सीमा विवाद है। उस विवाद को लेके एक युद्ध हो चुका है। उस युद्ध के बाद अब तक कोई युद्ध की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन चीन एक आक्रामक तरीके से भारत के साथ पेश आता रहा है, उनका रुख रहा है। और प्रधानमंत्री, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो चीन के नेताओं ने भी लीक से हटकर, प्रोटोकॉल को तोड़कर या एक नए ऐतिहासिक तरह से स्वागत भी किया है। लेकिन उसके साथ ही जो उनकी आक्रामकता है, चाहे वो भारत के नक्शा को काट छाट के दिखाए या भारत के प्रधानमंत्री को अरुणाचल न जाने की नसीहत उस सरकारी मीडिया से मिले, ये जो तमाम चीजें हैं ये संकेत देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें बहुत उम्मीद है कि इस दौरे के बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। निश्चित तौर पर दिलीप जी, जहां से आपने बात शुरुआत की कि एक सामान्य सी बात नहीं है कि वहां के राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए। इसको आप सहज भाव में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर इसको राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एक सफलता है कि पहली बार चीन की धरती पर किसी प्रधानमंत्री का इस तरह से स्वागत करना और स्वयं राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री का स्वागत करे। मुझे तो लगता है कि निश्चित तौर पर जो 1962 के बाद जो बर्फ जमी थी वो पिघलती नजर आ रही बात दूसरी, हाँ ठीक है कि वहां पर हमारा सीमा विवाद है। वो कहते हैं कि
98,000 किलोमीटर जो है जमीन आपने कब्जा रखा है, हम कहते हैं 38,000 किलोमीटर जमीन आपने कब्जा रखा है। सीमा विवाद है, इस पर वीजा का मामला वहां पर है। लेकिन अभी हमारे कांग्रेसी साथी कह रहे थे ये देन किसकी है? आप ये 5 दशकों की बात आप चाहते हैं कि 5 दिन में पूरी कर लीजिए? आपको शुरुआत तो करनी होगी ना। चीन के राष्ट्रपति ने स्वयं कहा कि मैं मानता हूं कि हमारे और भारत के बीच में कुछ मतभेद है, लेकिन उन मतभेद को दूर करने के लिए हमारे पास पर्याप्त राजनीतिक परिपक्वता है। ये किस बात का द्योतक है? तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पीछे लौटने का तो सवाल ही नहीं है। निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे और एक इबादत लिखने का काम करें। मुझे लगता है कि वो काम की शुरुआत हो गई है। जिस नक्शे की चर्चा दुरानी साहब कर रहे थे, देश का प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री हो। यह मामला आज का नहीं है, देन ही आपकी है। जिस समय वो अरुणाचल या जिस प्रदेश की बात आप कर रहे हैं कि नक्शे को काट छाट के दिखाया जाता था, उस समय नहीं हुआ। अगर उस समय ही आप अपना रुख स्पष्ट कर देते तो शायद आज बात यहां तक ना पहुंचती। लेकिन वो मामला उठाए, पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टपल वीजा के मामले पर बात होनी चाहिए, जो हमारे सीमा विवाद हैं उस पर बात होनी चाहिए, और उस पर समझौते हुए हैं कि दोनों पक्षों के बीच में जो सैन्य अफसरों के बीच जो मंथली बैठक होती थी, अब वो जल्दी बैठक होगी। दोनों सेना मुख्यालयों के बीच हॉटलाइन से बात होगी। सीमा पर अब तक जो सहमति बनी है उसके आधार पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। तो आप स्टार्ट तो कहीं से करेंगे ना। जब भी आप कोई लंबी दूरी तय करते हैं तो एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ता है। आप छलांग मार के नहीं जा सकते हैं। मुझे लगता है ये 3 दिन की यात्रा उस दिशा में 3 पग है। निश्चित तौर पर उस यात्रा को पूरा करेंगे। जी, आपके पास मैं लौटता हूं। हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता अर्पित सिंह ने क्या कहा है इस विजिट के ऊपर। कांग्रेस पार्टी के नेता अर्पित सिंह का बयान, लेकिन चलिए हमें कुछ तकनीकी खराबी कारण नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, हम उसको कोशिश करके आपको दिखाते हैं। लेकिन प्रबोध जी, आपसे बहुत छोटा सा सवाल, आप रक्षा कि भारत और चीन के रिश्ते अब जो विवाद है, सीमा विवाद, उससे आगे उसकी संभावना तलाशी जा रही है कि व्यापार से, सांस्कृतिक जो संबंध है उसको बेहतर करने से, या पीपल टू पीपल कांटेक्ट बेहतर करने से जो विवाद है उसको भी आने वाले समय में हम सुलझा लेंगे। तो ये आपको लगता है कि ये जो रास्ते लिए जा रहे हैं कि व्यापार से या व्यापार अगर संबंध अच्छे हों, निवेश यहाँ पे होने जा रहा है, एक बड़ा निवेश का वहाँ से आज भी जो वहाँ के उद्योगपति हैं उन्होंने भी निवेश का बड़ा निवेश करने का यहाँ पे उनसे बातचीत हुई है, समझौते हुए हैं। तो कुल मिलाकर के आपको लगता है कि ये जो रास्ता है जो व्यापार का और सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये विवाद जो है, सीमा विवाद, इसको वाकई उस राष्ट्र उसको संभावना समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है? निश्चित रूप से भारत और चीन के संबंध है हुएनसांग के समय से बड़े प्रगाढ़ रहे हैं, और दोनों देशों के बीच में जो बौद्ध धर्म के को लेकर करके बहुत सारी समानता रही इस देश के साथ। सांस्कृतिक जो है दोनों संबंध दोनों देश के बीच बहुत अच्छे रहे हैं। 1962 के बाद से जो बीच में जो एक अविश्वास का वातावरण पैदा हुआ, वो अब निश्चित रूप से वो अविश्वास का बादल छटेगा, और हमें विश्वास है कि अब जो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि ये व्यापार बढ़ाना सिर्फ भारत के इंटरेस्ट में नहीं है, व्यापार जो है वो चीन के लिए भी ज़रूरी है कि उनकी भी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल कोई बहुत अच्छी नहीं है अभी। उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए दोनों देश के हित में अच्छा है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो रास्ते हैं, एक माना जा रहा है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, अगर आपका इकोनॉमिक टाइज अगर बेहतर होते हैं तो कन्फ्लिक्ट की जो स्थिति होती है वो कम हो जाता है। क्या आपको लगता है कि ये जो रास्ते हैं, क्योंकि भारत का रुख एक अलग है, भारत की नीति अलग है, जो चीन का रुख और नीति है वो बिल्कुल अलग है अब तक? निश्चित तौर से ये हकीकत है कि चाइना हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी को नहीं बदल सकते। और जब तक पड़ोस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो हमारी जो है उन्नति और तरक्की में बहुत सारी बाधाएं आएगी,
क्योंकि जब तक दोनों देशों के बीच में या पड़ोस में शांति का माहौल नहीं हो, तब तक जो है देश की अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम पैसा जो है वो शस्त्रों पे और हथियारों पे खर्च होता है, और देश की व्यवस्था में, देश के विकास में अगर उसी पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए तो ये दोनों देशों के बीच में चलिए अनीस दुरानी साहब, 2-3 अहम पहलू हैं इस दौरे के, जो खास करके प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री का ये दौरा यहाँ पे खत्म नहीं होता, लेकिन 3 दिन वो चीन में रहते हैं। चीन से भी एक दौरे से हमें संकेत मिलता है, और जो संकेत हैं वो एक अलग रिश्ता, क्या जो चीन कायम कर, भारत के तरफ से तो प्रयास हैं, भारत के तरफ से लगातार प्रयास होता रहा है, क्या चीन के तरफ से भी आपको एक उसी तरह से जो कुछ, जैसे जो प्रधानमंत्री के स्वागत से लेके और जो बातचीत का जो रहा है, चाहे युवाओं से यूनिवर्सिटी में मिले प्रधानमंत्री, चीन के यूथ से जो उनका इंटरेक्शन है उसमें, चाहे उनके उद्योगपति से इंटरेक्शन है, तो क्या चीन के तरफ से भी रुख में आपको बदलाव नजर आ रहा है कि चीन और भारत के रिश्ते, एक तरफ हमने नक्शा की बात की, नक्शा और मीडिया में एक बात है, लेकिन देखिए ऐसा है, डिप्लोमेसी ये होती है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, ये डिप्लोमेसी उसी अंदाज की डिप्लोमेसी है। अभी मेरे साथी कह रहे थे भाई कि ये हमारी देन है, वो उस वक्त एक डिप्लोमेटिक माहौल दूसरा था, वो युग जो है वो पूरा बीत चुका, जिस जमाने की डिप्लोमेसी उस जमाने में थी, जिस तरह के कंट्रीज के इंटरेस्ट हुआ करते थे इकोनॉमिक, वो तमाम चीज़ें दूसरी थी। ठीक है, ये कांग्रेस के ज़माने में उसने अटैक किया, और इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है, मोदी जी कितना विश्वास कर सकते हैं? वही चाइना है कि एक दिन प्रधानमंत्री वहाँ मिलकर आए और उसके शायद दूसरे दिन या तीसरे दिन उसने बॉर्डर पर हमला कर दिया, तो ये एक बात अलग है। लेकिन अब जो अभी भी ऐसा नहीं है कि 62 के बाद से सरकार खामोश बैठी रही हो। अभी इन्होंने भी कहा है कि महीने वाली मीटिंगें होती थी, वो उन्हें बंद हो गई थी बीच के अंदर, उसको फिर शुरू किया गया है। ऐसा नहीं है, प्रयास होते रहे हैं, और भारतीय लीडर चाइना गए भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसके हाल पर छोड़ दिया हो, लेकिन हर दौर में स्थितियां बदलती हैं, उसके हिसाब से फिर डिप्लोमेसी चलती है। लेकिन क्या जहां तक अब मैं समझता हूं, मेरा सवाल है, क्या आपके चीन के रुख में, मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली ज्यादा आएगी, इसलिए कि जितना हमसे सिर्फ बोल बचन वाली बातें हैं उसकी, पाकिस्तान को उसने गोद में बिठा रखा है, पाकिस्तान के लिए सड़कें बना रहा है, वो पूरा एक उसमें तमाम चीजें वो कर रहा है, पाइपलाइन पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है, सड़कें बना रहा है, पाकिस्तान को बिल्कुल उसने अपनी गोद में बिठा रखा है। और जहां तक इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात है, उसको पाकिस्तान द्वारा सपोर्ट मिल रहा है, जो हमारी किसी भी जो हम उसको पेश करेंगे उससे ज्यादा बड़ी चीज है उसके लिए, कि उसको समंदर का रास्ता मिल रहा है। इसलिए हमको तो वो सिर्फ बातों में उलझाना चाहता है। दूसरी बात ये कि एक इकोनॉमिक कंपल्शन उस पर भी है, उसको भी एक नई मार्केट की खोज है, और हिंदुस्तान जो है बहुत जबरदस्त उसका बायर है, लेकिन ये वन साइडेड ट्रेड कब तक चलेगी, ये भी सोचने की बात डेफिसिट है, ट्रेड इम्बैलेंस है, दोनों के बीच में। जी एक दिनेश जी, आपको नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि व्यापारिक असंतुलन था, तो हुआ कैसे ना? अगर आप स्टार्टिंग से करते हैं कि ठीक है कि 72 अरब का हम लोगों का दोनों का जो है निवेश है, जिसमें उनका जो है 60 अरब का है और हमारा 12 अरब का है, ये 48 अरब का जो डिफरेंस है एक दिन में पैदा नहीं हुआ ना। उन्होंने अगर मार्केट खोजा तो हमने मार्केट क्यों नहीं खोजा? वो पाकिस्तान को गोद में बैठा सकते हैं, वो पाकिस्तान को कंधे पे बैठा सकते हैं, लेकिन अब भारत देश को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी चीन की धरती से कर रहे हैं, इसमें तो आपको फक्र होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी अगर आज वो पाकिस्तान को गोद में बैठा रहे हैं, इस चीज का आभास उनको है कि वो जिस पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा रहे हैं वहां का वातावरण कैसा है। जब प्रधानमंत्री वहां गए उसी समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां हुई, बट नेचुरल है कि चीन समझ रहा है। और जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान और चाइना आपस में मिलते हैं, 1/3 मुल्क का नेतृत्व कर सकते हैं, और सिर्फ अपना ही भला नहीं कर सकते हैं बल्कि पूरे विश्व का भला कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। अगर सिर्फ निगेटिव वे में आप देखेंगे, अगर सिर्फ आप भाजपा और चीन को देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको भारत देश और चाइना के परिदृश्य में देखेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक सफलता मिलती हुई दिख रही है। और हमेशा अभी जैसे प्रमोद जी कह रहे थे कि ठीक है हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उससे रिश्ते तो बेहतर कर सकते हैं, रिश्ते तो अच्छे कर सकते हैं। तो
तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है इस प्रयास के माध्यम से रिश्ते अच्छे होंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको सारे लोगों से मिलवाया गया, आश्चर्य नहीं, लेकिन मुझे युवा पीढ़ी से मिलवाया गया। इस 3 दिन की यात्रा में 2 विश्वविद्यालयों में हमारी मुलाकात युवा तबके से कराई गई, जो आज के भी कर्णधार हैं और आने वाली पीढ़ी उन्हीं की है। तो आज दोनों देशों के पास मानवीय संसाधन है। एक चीज हम नहीं कह सकते हैं कि चीन में चारों तरफ खुशहाली छा गई है। बढ़ती आबादी के बोझ में आज चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आप कुछ शहरों को छोड़ दीजिए तो पूरे मुल्क का विकास वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी आवश्यकता है हिंदुस्तान की। निश्चित तौर पर मैं मानने को तैयार हूं कि वो बाजार तलाश रहे हैं, तो क्या हम बाजार नहीं तलाश सकते हैं? हमको भी बाजार तलाशनी होगी। और माननीय प्रधानमंत्री का जो मेक इन इंडिया का नारा है वो यही है ना कि हम भी सारे देशों में बाजार तलाशें। हमारे पास हैंड्स हैं, हम उनके इस्तेमाल करें, हम अपने यहां प्रोडक्शन करें, दूसरे देशों का सहयोग लें और उसका निर्यात करें। ये तो अच्छी बात है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बात है, ये भारत देश के लिए अच्छी बात है। और निश्चित तौर पर बार बार ये कहा जा रहा है कि 21वीं सदी एशिया की है। तो जिस तरह से भारत देश विकास दर को आगे बढ़ा रहा है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 21वीं सदी भी भारत की होगी, कि बशर्ते इस मुल्क के सारे राजनीतिक दल मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना योगदान भी दें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं भारत और चीन संबंध के, खास करके प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय दौरे के बाद जो पूरा हो चुका है, इसके बाद किस तरह से या कितना या क्या वाकई बदलेगा भारत और चीन का संबंध। और भारत के चीन और संबंध बदलने के कई मायने हैं। अगर वो बेहतर होता है तो ये न सिर्फ एशिया बल्कि ग्लोबल इसका एक इम्पैक्ट होगा, इसका पूरे दुनिया पे इसका असर होगा। और दुनिया पे जिस तरह का असर हो सकता है, क्योंकि जो बात प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि ये सदी जो है वो एशिया की सदी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चीन और भारत अकेले में लगभग 1/3 जो जनसंख्या है दुनिया का, वो चीन और भारत सिर्फ इसी 2 मुल्क में है। इस दोनों मुल्क का साथ आना, साथ काम करना दुनिया के बेहतर के लिए एक अच्छे प्रयास होंगे। लेकिन जो सवाल है कि क्या ये रिश्ते वाकई बदलेंगे या बेहतर होंगे। लेकिन उससे पहले आप जाएं हम अपने पैनल के पास। सबसे पहले कांग्रेस नेता RPN सिंह की हम वो रिएक्शन आपको हम दिखाते हैं। चीन के दौरे पे हिंदुस्तान को क्या मिला, इस पे हमें चिंता करने की ज़रूरत है। हमने ई-वीज़ाज़ चीन के पर्यटकों को दिया, अच्छी बात है, पर चीन ने कम से कम अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं माना। कूटनीति का मतलब होता है कुछ हम देते हैं तो कुछ पाते हैं। तो हमने उनको ई-वीज़ा दिया, तो प्रधानमंत्री जी को कम से कम चीन को ये तो मनवा देना चाहिए था कि ये 2 हिस्से जो यहाँ स्टेपल वीज़ा नहीं लगेंगे, नॉर्मल वीज़ा लगेंगे, और ये दोनों अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो ये बात भी नहीं हो पाई। जब मैं गृह मंत्रालय में था तो जब भी बॉर्डर पे कुछ भी चीन और हिंदुस्तान के आर्मी में होता था तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे दिखाई देती थी। तो क्या बॉर्डर पे हमने कोई आगे कुछ कदम उठाया? उस पर भी हमने कोई चर्चा नहीं देखा। 46 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। इस पर हमने कौन से किस तरह की आवाज़ उठाई? क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए नासूर बन सकता है। और आप चाहेंगे जवाब देने के? बिल्कुल जी। कि जब कांग्रेस के नेता इस तरह का जब रिएक्शन देते हैं दिलीप जी, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप 5 दशकों से 6 दशकों तक आपने इस देश पे शासन किया। RPN सिंह जी जिस मासूमियत से सवाल खड़ा कर रहे थे, उस समय क्यों आप जवाब नहीं थे? जब आपके गृह राज्य मंत्री थे देश के, आप जाके जवाब देते, आप जाके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना के वापस ले आते, तब आप क्यों दुम दबा के बैठे हुए थे? मैं कह रहा था उस पार्टी की कायरता थी कि जिसको आज हम भुगत, जो कह रहे हैं कि हमको क्या मिला, इनको नहीं दिखेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कुछ लोगों को अभी नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा। आपको नहीं दिखा कि 1 जून से नथुला से मानसरोवर का रास्ता हमको मिल रहा है? शायद RPN सिंह को नहीं दिखा होगा, कांग्रेसियों को नहीं दिखा होगा कि जो व्यापारिक असंतुलन है उस पर टास्क फोर्स का गठन होने जा रहा है। ये कम बड़ी बात है, ये आपको नहीं दिखा होगा।
आपको तो सिर्फ ये दिख रहा है कि 1962 में आपने जो गवा दिया था वो मिला कि नहीं मिला, वो भी वापस आएगा। आप धैर्य रखिए। आप अगर 60 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 6 साल तो इंतजार कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 साल समय मांगा है। आप चाहते हैं कि आपने जितना, और एक सवाल अभी आप कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि इसके पहले देश की क्या स्थिति थी, कि लोग कहते थे हम कहां पैदा हो गए। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले क्या इसलिए मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर जो मिला है वो मिला है, और जो व्यापारिक असंतुलन था वो आपके 6 दशकों के शासनकाल का था, जो अब उसकी खाई पटने का काम माननीय प्रधानमंत्री हम ये नहीं कहते, मैंने तो बार बार आपसे निवेदन किया कि वो कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री गए और पहली बार इस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। आपको गर्व होना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए था कि एक प्रधानमंत्री वहां सिंह की तरह दहाड़ रहा है, और जिस 56 इंच की सीने की बात कर रहे हैं, आपने तो इस देश के देशवासियों का सीना 24 इंच कर दिया था। वो 56 इंच है, आपको नहीं दिख रहा है, नापिए, शायद आपको भी दिखेगा। जी। और जी अनीश भाई, पता नहीं है मेरे साथी को कहाँ 56 इंच का सीना दिख रहा है। हमको तो 56 इंच का सीना वो दिखता नहीं है। इसलिए कि कोई एक चीज तो बता दें। अब वो अभी जो बताया, उन्होंने भी बताया और अखबारों में भी आ रहा है कि इतना $45 बिलियन का उन्होंने वहाँ पाकिस्तान, जो हमारी जमीन है, जो पाकिस्तान में ऑक्युपाइड के, पाकिस्तान के पास ऑक्युपाइड है, वहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इतनी सरमायाकारी हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर कोई बात नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहते कि भाई स्टेपल वीजा बंद करो। इतनी तो बातें वो कर सकते थे, लेकिन छोटी छोटी बातों को भी, तो ये छोटी बातें कर दो आप। जब आप शासन में नहीं हो तो सड़कों पे उतर आओ, अब बैठे हो तो अब ये कहो कि ये होगा, इस तरह से होगा। किस बात का विश्वास करा जाए? कोई तो आप नीति बताइए ना। नहीं दुर्रानी साहब, जो इस तरह की दुहाई जब आप देते हैं, मैं यही तो कह रहा निवेदन कि 1962 के बाद अभी मैं गया था, अभी मैं बुमला बॉर्डर गया था। जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जाइए, आपको जाने के लिए सड़क नहीं है। आपके 60 साल का कुशासन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ये काम नहीं कर सकते थे। आप तेजपुर से तवांग तक रास्ता नहीं बना सकते थे। 1962 के युद्ध के समय की जो सड़कें बनी हुई है वही खस्ता हाल में है। आज पहली बार भारत सरकार कम से कम ध्यान दे रही है, पहली बार ध्यान दे रही है। गलत बात है ये, अजीब बात कर रहे हैं आप। जाके देखिए, मैं जाके होके आया हूं, देखिए मैं जाके होके आया हूं। नॉर्थ ईस्ट में जितनी सड़कें बनी है, आप जाइए, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, आप जिस चाइना की बात कर रहे हैं, आपके 5 मगर ये हो गई, 40-50 साल में खत्म नहीं होगा चीज। आप सिर्फ 5 सालों में क्या किया? अभी दिलीप जी कह रहे हैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन वो आगे का चर्चा नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि लोग इसलिए दुर्भाग्य मानते थे कि 10 वर्षों में इस देश को लोग समझते थे कि घोटालेबाजों का देश है, ये भ्रष्टाचारियों का देश है, इस कलंक से नहीं उबर पा रहा था। और 1 साल में आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 साल के बीच कोई ये कह नहीं सकता है कि प्रधानमंत्री जी या सरकार किसी मुद्दे में आई। जो एक और अहम सवाल पे प्रधानमंत्री जी ने आज, उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कहा कि अक्सर जो उनका विदेशी दौरा है उसको लेके विपक्ष आलोचना कर रहा है प्रधानमंत्री का। उन्होंने उस पर चुप्पी तोड़ी, उन्होंने चुटकी लिया कि उनको जो ज्यादा काम कर रहे हैं उस ज्यादा काम करने के कारण भी उन्हें अपने विपक्ष अपने निशाने पे रखा हुआ है। साथ ही साथ जी ज्यादा काम क्या कर रहे हैं सिवाय विदेशों में दौरे करने के? इसके अलावा वो क्या काम कर रहे हैं? आप ये मुझे बताइए कि जो इतने दौरे करे हैं उन्हें, उसका रिजल्ट क्या निकला है कहीं? सिवाय आके बयान देते हैं कि भाई ये हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली अब जहां से उन्होंने कहा इतने $82 बिलियन आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, कहीं से कुछ आया? अभी तक प्रैक्टिकल रूप में कुछ नहीं हुआ है, सब कागजी कार्रवाई कर रहे हैं और इसी में 1 साल निकल गया। दुर्रानी साहब, उस दिन सदन में भी हमारे एक सदस्य ने कहा था कि बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं। आज जब खेत में बीज बोते हैं दुर्रानी साहब, पता नहीं किसानी से आपका ताल्लुक है कि नहीं, तो बीज को अंकुरित होने में 2-4 दिन का समय लगता है। जब कोई बीज आप खेत में डाल देते हैं तो जब पर्याप्त वातावरण, सूरज की रोशनी और जलवायु, पानी और हवा पाता है, वो अंकुरित होता है। ये बीज डालने का काम किया जा रहा है। आप सोचे आज प्रधानमंत्री जी गए हैं, आज ही आपको सब कुछ मिल जाए। ये तो सिर्फ 1962 में हिंदी चीनी भाई करके युद्ध मिला था, ये मिल सकता है। लेकिन जब आप सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए उतरते हैं तो आपको कठिनाई होती है, समय लगता है।
प्रधानमंत्री जी जो आपको लगता है ना, आपके प्रधानमंत्री जी जब रहते होंगे, आपके नेता रहते होंगे, वो मौज मस्ती के लिए जाते रहे होंगे। अभी आपके एक नेता गए थे, इसलिए कृपया करके क्षमा कीजिएगा, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मौज मस्ती करने नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, बार बार निवेदन कर रहा हूं कि वो गए हैं, आपको दिख रहा है ना घूमने गए हैं, इनके नेता कहते हैं घूमने जाते हैं। जो व्यक्ति 1 मिनट का कहीं रेस्ट नहीं ले रहा है, और आप देखेंगे जिस दिन वो हिंदुस्तान लौटते हैं उस दिन भी वो काम करते हैं। यहाँ तो 60 सालों में क्या हुआ, एक नियम है, आप पता नहीं बता पाते जब तक राहुल गांधी लौट के नहीं आए थे कि आपके उपाध्यक्ष जी कहाँ गए हुए हैं। उपाध्यक्ष जहां भी गए थे, जहां भी क्या गए, प्रधानमंत्री नहीं है वो देश के, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, सदस्य हैं, हमारे नेता है, सदस्य नेता है, प्रधानमंत्री नहीं है, नेता है लेकिन संसद के प्रधानमंत्री नहीं है। हर वक्त आप बता नहीं पा रहे, आपके 2 दर्जन मौज मस्ती करने कौन जाता है, देश की जनता। और प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि पहली साल के लिए आप जरूरत नहीं है, ज्यादा तो मजाक की बात ही नहीं है। देश की हर चीज में पहली बार दिया है। अरे हिंदुस्तान वाले सारे लीडर गए हैं बाहर और सबका सम्मान हुआ है, सबकी इज्जत हुई है, सबको स्वागत हुआ है वहां पर। ऐसी बात हो रही है जो मोदी जी जाके कर रहे हैं, नहीं आपको क्या हमेशा से स्वागत हुआ है। हिंदुस्तान के नेता जब विदेश में गए उनका स्वागत हुआ है। इस तरह का स्वागत नहीं, यही तो आपको अखर रहा है। ये तो क्यों दिखा रहे हैं जो अरे आपके नेता कहते हैं ये तो इवेंट मैनेजमेंट की तरह काम, मैनेजर की तरह काम करते हैं, यही तो है। आप वो भी नहीं कर पाए, आप तो वो भी नहीं कर पाए। आप तो देश में घोटाले करने से आपको समय नहीं मिला। आपको अगर आपको एक प्रदेश में नेता अगर एक कंपनी पर जांच कराई जाती तो आपको संदेह पैदा हो जाता है, भीड़ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको एक प्रदेश में भूमि की बड़ी दिक्कत हो रही, भूमि घोटाले की जांच पर तो पूरी पार्टी को दिक्कत होने लगती है। भूमि घोटाले में कुछ करिए ना, बातें करना है। 2 साल हो गए आपका, कर रहे हैं, चिंतित मत रहिए, कानून अपना काम करेगा, पार्टी नहीं क्या करा सिवाय बयानबाजी करने के, क्या करेंगे मुझे बताइए। 2 साल से सरकार है आपकी, राजस्थान में वाड्रा ने ये कर दिया, वाड्रा ने ये, अरे पकड़िए ना भाई। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष उनको क्रिटिसाइज कर रहा है जब वो ज्यादा काम कर रहे हैं, जब वो विदेश जा रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, विदेश जाके उन देशों के साथ जो संबंध, जहां आप 20 साल 25 साल 30 साल कई जगह ऐसे हैं जहां नहीं गए, उन देशों से, उन मुल्क से आप अच्छे संबंध कायम कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। आज दुनिया ग्लोबल हो रहा है, आपको इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में तमाम मुल्कों के अपने रिश्ते बेहतर करने होंगे, आपको उनके आर्थिक साथ ही साथ डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं उसको स्थापित करने होंगे। उसको बेहतर करने के लिए अगर विदेश दौरा वो कर रहे हैं तो उस पर आलोचना क्यों नहीं, उस पर आलोचना क्यों? देखिए ऐसा है, दौरे तो हर गवर्नमेंट के मिनिस्टर दौरे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर दौरे करते हैं। एक तो ये बड़ी अजीब बात है कि देश का विदेश मंत्री तो बेचारा घर में बैठा हुआ है और वो दूल्हा बने हुए प्रधानमंत्री जी सब जगह पहुंच जाते हैं, छोटे से छोटे देश में जहां जाने का प्रोटोकॉल नहीं बनता, जहां बहुत छोटा जूनियर मिनिस्टर जाकर एक बातचीत कर सकता है, मगर प्रधानमंत्री को लगता है दुनिया देखने का शौक है और बेचारे विदेश मंत्री को घर में बिठा रखा कि तुम घर में बैठो। ऐसी सरकार तो हमने कभी देखी नहीं, पहली सरकार देखी थी कि जो प्रधानमंत्री मौन होता था, आपने वो सरकार देखी थी जिसका प्रधानमंत्री मौन होता था और रिमोट कंट्रोल जनपद मार्ग पर हुआ करता था। तो आपकी आदत पड़ गई, आपको तो आदत पड़ गई, उसी को आप अभी तक समेट नहीं पा रहे। तो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री होके कैसे दूसरे का, वो तो ये कोई दौरा जो करोड़ जनता का सारा कोई दौरा जो है वो चिंतित है, कोई दौरा 10 दिन में तय नहीं होता, हर दौरे के पीछे 6-6 महीने साल भर का वर्क होता है, उसके बाद दौरे होते हैं। आपके यहाँ होता था, यहाँ तो सरकार बनने हुई, आप तो आप 50 साल लगा दिए ना, आपको तो नेपाल जाने में आपको 30 साल लग गए, आप नहीं जा पाए। 50 साल का नतीजा है कि आज दुनिया में सम्मान है। आप जिन देशों में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इसके शासन का होते हुए वहां तक जा तक नहीं पाए, आपको फुर्सत ही नहीं थी। आपको प्रॉपर्टी डीलिंग से फुर्सत हो तब तो आप जाइए। अजीब स्थिति हो गई। मोदी जी करते थे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, हमारे को प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करा, जनता देख रही। प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी एक और बयान है, उसके कुछ अंश को आपको दिखाते हैं कि उन्होंने सिर्फ विपक्ष जिस तरह से प्रधानमंत्री पे हमला, उन्होंने कहा विपक्ष के क्या उन्हें ज्यादा काम करने के लिए उनकी आलोचना किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1 साल पहले जो स्थिति थी अब देश बदल रहा है, भारत बदल गया। क्या कहा प्रधानमंत्री, वो तो खुद देखें आप। 1 साल के भीतर छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं।
यही जो मनोभाव था, उसमें से आज दुनिया कह रही है कि विश्व का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला कोई देश है, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरे देशवासियों, प्रबोध जी, क्या जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इससे पहले 1 साल पहले लोग सोचते थे इस देश में क्यों पैदा हुए, जो कुल मिला के जो उनका लबो लिबाव था, क्या कह रहे हैं वो? जी, निश्चित तौर से जो देशवासियों का मनोबल जो है, एक भारतीय होने के नाते जो एक भारतीय गर्व से कह सकता है कि हम भारतीय हैं, वो स्थिति इस देश में अब आ गई है। तो 1 साल में आई है, पिछले 1 सालों में जो है 1 साल में आई है, 1 साल पिछले 1 सालों में जो देश में जो भाव पैदा हुआ है लोगों के बीच में जी, कि हम एक सशक्त देश के नागरिक हैं, हमारे देश का भी इस दुनिया में सम्मान है, और खास करके जो है सेना के जवानों का जो मनोबल है, हम कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई है। जिस तरीके से सेना के जवानों का मनोबल गिरा हुआ था, क्योंकि उन्हें हर बात के लिए आदेश लेना पड़ता था दिल्ली से, अब वो स्थिति नहीं है। जो सेना तैनात है बॉर्डर पे, उसे किसी की भी जो है परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद का कमांडर है। वो अब मेरा सवाल है कि क्या ये जो बात दिनेश जी वो कह रहे हैं, इसके पीछे क्या प्रधानमंत्री की क्या सोच है? प्रधानमंत्री की सोच यही है, मैंने पहले क्या आप वाकई आप सोचते थे कि इस देश में क्यों पैदा हुआ 1 साल पहले? नहीं होता था ना। देखिए एक चीज, आप किसी मुल्क में, दिलीप जी, आप किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी मुल्क में होते हैं और इस मुल्क में कोई घटना और दुर्घटना होती है, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ता है। आपको उदाहरण मैं दूं, जब आप विदेश में जाते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, कोई मेरे होम डिस्ट्रिक्ट का आदमी मिल गया तो मुझे लगता है मेरे घर का मिल गया, अगर कहीं मेरे ब्लॉक का मिल गया तो लगता है मेरे परिवार का सदस्य है। इसी तरह से जब आप दूसरे देश में होते हैं, कोई भारत का मिलता है तो लगता है घर का मिल गया है। तो अगर हिंदुस्तान में कोई भ्रष्टाचार होता है और उसके नाते विदेश में रह रहे लोगों को शर्मसार होना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ता है। आज प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि आज उनका जो स्वागत हुआ है वो प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं है, वो नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है, 125 करोड़ भारतीयों का स्वागत है। तो निश्चित तौर पर जब आज चाइना में जो भारतीय रह रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाते हैं, वही अमेरिका जो कभी वीजा देने से मना करता था, अगर वही पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रहा है, आज टाइम मैगजीन में कुछ संपादकीय लिख रहा है, तो फक्र से किसका सीना 56 इंच का नहीं होगा? हाँ, कुछ लोगों का 56 इंच का नहीं होगा, जिनको ज्वेलसी होगी, जो नहीं कर पाए हैं, तो अगर 56 इंच का भी होगा तो नापने में उनकी भूल हो जाएगी, यही भूल हो रही। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इस 1 वर्षों में भारत का स्वाभिमान फिर से वापस आया है, जिसके नाते सभी भारतीयों का, चाहे वो जिस मुल्क में हो, उनका सीना आज फक्र से चौड़ा है, आज उनका सर जो है फक्र से उठा हुआ नजर। साहब, मैं तो समझता हूँ बड़ा शर्मनाक स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि इन्होंने सारी प्राइम मिनिस्टर की मर्यादाओं को भंग कर दिया है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको कांग्रेस जमाने की बात बताऊं, कभी भी जब प्राइम मिनिस्टर देश से बाहर होता था तो कांग्रेस पार्टी ने कभी आलोचना नहीं करी प्राइम मिनिस्टर की, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी गए हों, चाहे वीपी सिंह गए हों या कोई और गया हो, हमेशा ये एक मर्यादा रखी कि जब प्राइम मिनिस्टर विदेशी दौरे पर है तो उसके बाद आलोचना नहीं करी जानी चाहिए। लेकिन ये ऐसे नौटंकी प्राइम मिनिस्टर हमको मिले हैं भाग्य से कि ये विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं। ये जर्मनी में गए तो इन्होंने कहा काला, उसको कोयले के इशू को छोड़ दिया, या फ्रांस में गए तो इन्होंने कहा कि सारे देश को भ्रष्ट कर दिया। ये सब बातें शोभा नहीं देती। इसका मतलब यह कि बहुत ही इमेच्योर प्राइम मिनिस्टर हैं ये, और इनको ये सेंस नहीं है इस चीज की कि विदेशों में भारत के सम्मान को किस तरह, अंदरूनी झगड़े हमारे हो सकते हैं, हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ सकते हैं, लेकिन विदेश के अंदर जब आप गए हो तो आप उस एक महान देश के प्रधानमंत्री हो। प्रॉब्लम यह है कि इनकी महानता का मतलब जो है मोदी जी के नजदीक मैं हूं, क्योंकि हर चीज में वो मैं है उनकी, इसके देश का नहीं है मामला वो। नहीं, देखिए एक तरफ तो कांग्रेस ये कहते हैं, कांग्रेस के साथी को देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको स्वागत करना चाहिए ना, आपको उनका स्वागत भी आपको इवेंट लगता है। ये दोहरा, कम से कम ये दोहरा मापदंड मत अपनाइए ना। अगर आपको प्रधानमंत्री का स्वागत लग रहा है तो आप स्वागत कीजिए कि अच्छा है, भारत का स्वाभिमान ऊंचा हो रहा है, तब आपको सीना भी 32 इंच का नजर आता है, दिखता है, तो जब कम से कम आप दोहरी बात क्यों करते हैं? अगर आपको अच्छा लग रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, आप स्वीकार कीजिए। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं। कौन सी नौटंकी कर रहे हैं? आपको नाटक, जब कोई आदमी काम करता है तो आपको नाटक लगता है, जब कोई आदमी 24 घंटे काम कर रहा है तो आपको नौटंकी लगता है। लेकिन अगर इस देश के प्रधानमंत्री, बहुत सारे देश के प्रधानमंत्रियों पर आरोप लगा है, राजीव गांधी पर, स्वर्गीय राजीव गांधी पर भी लगा था,
आदरणीय मनमोहन सिंह पर भी लगा। तो जब कोयले की कालिख पहुंचेगी तो उसको धोने का काम कुछ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? विदेशों में जाकर किया जाएगा, इसलिए बता, विदेशों में जाकर देश से कपड़े उतारो। पहले सुन लीजिए दुर्रानी साहब, बताया जाएगा कि माहौल बदल रहा है, स्थिर सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 30 वर्षों में पहली बार बहुमत की सरकार। आप इंकार कर देंगे इस तरह से कि कोई 1 वर्षों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तब आपको आकर्षित होंगे। आपको बताएं नहीं, ये वही मुल्क है जहां कोयले का घोटाला हुआ, ये वही मुल्क है जहां 2G हुआ, 3G हुआ, 4G हुआ। वो कह रहे हैं आप यही बताएं जी, वो कह रहे हैं आप विदेश में जाके मत कहिए, ये कह रहे हैं कि आप देश में कहिए। दुरानी साहब, दुरानी साहब, हम ये कह रहे हैं आप बताइए या ना बताइए, ये मीडिया का युग है। आपसे पहले उनको जानकारी हो जाती है, आपको बाद में होती है। सब कुछ बात नहीं है। प्रधानमंत्री का ये कहना जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, ये मर्यादा के खिलाफ बात है। देश के लोगों में विश्वास पैदा करते हैं, उन निवेशकों में विश्वास पैदा कर। और अगर आपको शर्म से आपका सर झुक रहा है तो यहां भी जो नेतृत्व करता है उनके लिए भी सीख है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी विदेशों में जाकर ऐसा कहेगी। मैं तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। अगर कोई अच्छा आपने काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सदन में कहते हैं, दूसरे देशों में जाकर कहते हैं कि मैं मानता हूं कि हर सरकारों ने अच्छा काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, हम कहां मना कर रहे हैं। आपने हो सकता है भारत और चीन के संबंध में भी काम किया होगा, हम तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको स्वागत करना चाहिए। 1 साल में बिल्ली की तरह आप खंभा नोचने का काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर काम कर रहे हैं तो आप उस पर, प्रधानमंत्री जी अगर देशों का दौरा कर रहे हैं, नहीं इस आपको हो रहा है ना। अगर प्रधानमंत्री जी विदेशों में दौरा कर रहे हैं कि ये झूठ पर झूठ तो बोला जा रहा है, में दौरा कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि विदेश मंत्री घर पे हैं। अगर पेट में दर्द लग रहा है, भारत और चाइना का मामला नहीं, भारत और मंगोलिया का मामला, यहाँ हमको लग रहा है भारत और कांग्रेस के सामने मानसिकता से जरा ऊपर उठिए, जरा इस मानसिकता से ऊपर उठिए और हिंदुस्तान की चिंता करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय खत्म हो गया। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।